वरीय पुलिस पदाधिकारी, वर्तमान में आईजी पुलिस बिहार, लेकिन उससे कहीं आगे चलकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी पहचान एक ऐसे प्रेरणा के रूप में है कि हर युवा आपकी तरह बनना चाहता है और आपने ठाना है कि बिहार को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार। इसके माध्यम से आपने तमाम बिहार के युवाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया है। हमारी अगली जो पैनलिस्ट हैं, थिएटर, फिल्म, पॉडकास्ट और सामुदायिक पहलों में आपका कोई जोर नहीं। सदैव आप टेक पत्रकारिता में बहुत अग्रणी रही हैं। रचनात्मक लेखन आपके बहुत शानदार रहे हैं। संथेरी बालिया लेखिका, संथेरी बलाया लेखिका, जोरदार तालियां। सबकी तालियां आप सुन रही थी, इनके लिए तालियां जोरदार हैं। पौराणिक कथाओं, इतिहास के समकालीन कथाओं, माइक्रोबायोलॉजी, मार्केटिंग और बौद्धिक संपदा के साथ, डिग्रियों के साथ वे अपनी कहानी कहने में अद्भुत कला का परिचय देते हैं। भारतीय और वैश्विक स्तर पर जो सामंजस्यता आपने बिठाई है वह अद्वितीय है। आप हमारे बीच है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ माधवी गिरीश कुत्ते लेखिका। जोरदार तालियां समर्पित की जाए। मैं पुनः कहूं, इनकी एक पुस्तक रेखना मेरी जान, पर्यावरण पर जो पुस्तक है उसने आसमान को छुआ है। और पुनः इस बात को कहना होगा कि आपका 1.77 करोड़ बेस्ट सेलर के रूप में आप प्रचलित हैं। तो तालियां सर के लिए। श्री रत्नेश्वर सिंह, एक बार पुनः आपका मंच पर स्वागत। 20 से ज्यादा पुस्तकें आप लिख चुके हैं और उससे कहीं ज्यादा आपने प्रारंभ में जो सोंधी मिट्टी की बात की, दौनी से लेकर के और तमाम वो गांव वाली बात और जुगाली तक की जो बात की, वो अपने आप में बेहतरीन था। एक बार पुनः तालियां समर्पित की जाए। Thank you. So I am being given the responsibility to moderate the session in which the topic is how women shape stories differently and how the impact of such stories could be or could be in society. So I start with the very name Nalanda. Nalanda historically is made up of Na Alam Da, the land which never ceases to give, which keeps on giving. And the literature festival, which has been named after the great historic Nalanda, tempts me to start the question with Santheri ji on the basic history of writing by women. I would say, globally, how do you see voices emanating from the female side? And in comparison, if you look at how we had a history in India and how do you relate it to the present? Thank you, Vikas ji, for this question, and thank you to Nalanda Film Festival, Literature Festival, for inviting me here. Yes, it's been a very wonderful afternoon. इतने दिग्गजों के बीच में इतने interesting insights और एक ही दिन में और एक ही afternoon में, I think it's been quite an exciting day for me. So thank you so much, and I'm also honored to be seated right beside Ratneshwar ji. Thank you so much for joining us, and Madhvi, of course, I know from before. This question is interesting. What has been the history of women writing in India? जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्री का जो दर्जा था, जो स्टेटस था, वो आज के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट था, एंड दैट्स अ नोन पार्ट ऑफ इट. अमी जी ने अभी उनके अपने सेशन में काफ़ी कुछ हमारे एपिक से, हमारे प्राचीन जो रेफरेंसेस से काफ़ी कुछ दिया हुआ था. Some of the earliest writers, if you see, and which we were discussing with Sir also, Gargi comes out as one of the earliest references we have, a philosopher par excellence, and she epitomized what we know as one of the earliest references we can go back to, and not because she was just a writer or she was a poet or a writer or a philosopher, but because she had the freedom to debate with her husband, Yajnavalkya. So that was the freedom which our ancient society gave to women
in order to express themselves. So I think self-expression and expression to communicate started very early on in our ancient, timelines. And I would say that if you keep looking at the timelines as you move down the curve, the map of India, we also have people down south. मैं तो दक्षिण भारत से हूँ, so I would like to, मैं Bangalore से हूँ, and I find it very refreshing that I can give some perspectives from the south of the country as well. So as we move to medieval India, we do know for a fact that we had poets in Tamil Nadu by name Avvaiya, who was there in the Sangam period. मतलब शायद around something between the 8th century or she was around then. And she had a very unique story. She chose to become old before her time. ये एक legend है कि उन्होंने अपने आप को बहुत क्या बोलते हैं, she decided to look elderly before her time. So a very young girl suddenly chose old age, and she lived like that throughout her life so that she does not come under the gaze of anybody in society, and she lived that way. The 14th century, a similar thing happened. We had Akka Mahadevi in Karnataka, who was also a very beautiful young lady who was married to a king, who went on to become a poet, and not by choice, as in she had to leave her husband in order to pursue her love for Lord Shiva, who was called Channamallikarjuna in the local language in North Karnataka. So we have references like this, of course Meera in the Bhakti movement. So we always had, and we also in the life of Shankaracharya also, Adi Shankaracharya, he also encouraged debates where, he encouraged female debate, right? It is a very famous reference that we have. So in the history, in the timeline of history, women have always had their place in ancient and medieval India. But looking at what the Indian context, if you compare it with the rest of the world, so was such voice even available globally? Globally, I think the earliest voices may have come only towards the medieval period. Ancient voices, perhaps in the Greek and Roman era, perhaps there were a couple of authentic voices that possibly they have been there. But the earliest references perhaps were in medieval times only. And again, unfortunately, they could not show themselves in their true names. They never had the liberty to write in their names. They always had to take a pseudonym, have a male avatar, and express themselves. As latest as the 17th, 18th century, we do know of writers who could never, वो अपने identity के जरिए कभी लिख नहीं पाती थी because it would never get published. So that I think. That's very true, in fact, and that is the difference in which we can see the culture of India with the rest of the world. Here you find, as you were mentioning, Maitreyi was wife of Yagyavalkya who questioned him, but we find voices like Lopamudra, Apala in the Vedic texts, and many more who have been ascribed to certain verses. So we have a long tradition. I would like to switch over to Madhuri ji. You are coming from an ancient tradition of women thinking and their voices getting recorded. How do you see women writing today? And to begin with, how did you get into writing? नमस्कार। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, आभार प्रकट करना चाहूँगी वैशाली जी का और अमात्य फाउंडेशन का, जिनकी बदौलत मैं पाटलिपुत्र की धरती पे हूँ और इन सब दिग्गजों के साथ आज भी बैठ सकती हूँ। मेरा राइटिंग करियर इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं यहाँ बैठने के लायक हूँ। Coming back to your question, sir, you're asking about the women writers. पहले आप बताइए कि how did you get into writing? मतलब how did your journey start, and then how do you see the tradition and women into writing? I've always been a storyteller of time, but I actually started writing only when COVID struck and I had nothing better to do in life besides taking care of my children. So that's how I got into storytelling, and very hesitantly I showed it to the near and dear ones and they pushed me into writing. So that's how my journey began. Then I wanted to build a discipline around my writing schedule, and that's how I got into a group
with a few like-minded people, and we started an online community called Ink and Quill Collective. I'm proud to say that last 3-4 years we have been rigorously carrying out sprints. We have around 500 plus people who have joined us on this journey, and we have sprints for them. We have author sessions with them, and in-house guided sessions. Then we also have launched our own magazine by the community members for the writing community at large, and we are already working on our third issue now. So it began in COVID, but you have already had a long journey as a writer. Oh, it was a roller coaster ride, and it was very exciting. That's how life actually treats you. It gives you certain surprises, and then you find that you are at the best of it. रत्नेश्वर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में महिला चिंतकों की, विचारकों की बहुत पुरानी परंपरा है, तो यदि हम भारतीय इतिहास में भी बात करें, दर्शन में बात करें और वर्तमान से थोड़ा सा उसको तुलना करने का प्रयास करें, तो क्या अंतर आता है फेमिनिन वॉइस में और एक मेल वॉइस में? या मेल दर्शन में भी क्या कोई अंतर दिखता है? गार्गी जब प्रश्न करती हैं, उनके जो प्रश्न हैं, या केवल को एक समय क्रोध भी आता है, देन ही आंसर्स, क्या लगता है जो महिलाओं की अभिव्यक्ति रही, क्या हम विश्व में हम लोग क्षेत्रों से आगे थे? और यदि हम कुछ पढ़ते हैं तो क्या हम बता सकते हैं महिला की अभिव्यक्ति है या पुरुष की अभिव्यक्ति? सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न है। और मुझे पहले से पता था कि आप IPS हैं और पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पास वो जो खजाना है, तो हम लोगों की परीक्षा भी थोड़ी होने वाली है कि आपके ऐसे प्रश्न आएंगे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है ये। तो मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा कि लिटरेचर तो वैसे जो साहित्य है ये ग्लोबल है। आप भारत में कुछ नाद करें तो विश्व तक पहुंचता है, या विश्व में कहीं कुछ नाद हुआ तो वो भारत तक भी पहुंचता है। तो वहां से जब हम शुरू करते हैं, वेद में आकर के वो चीज दिखाई पड़ती है जिसकी चर्चा लोपामुद्रा और इस सब की जो वेद लिखने वाली नायिकाएं हमारी रही हैं, वहां उनकी चर्चा भी हुई। एक बात मैं रिपीट कर दूं, मैंने उस सेशन में भी कहा था कि किस्सा गोई की परंपरा होमोसेपियंस से पहले की है, और एक बूढ़ी स्त्री, जो वैज्ञानिकों का अब तक का अध्ययन है उसके हिसाब से, एक बूढ़ी स्त्री ने पहली बार किस्सा सुनाने की कोशिश लगभग 18 लाख साल पहले की थी। वो होमो इरेक्टस थी, होमोसेपियंस नहीं थी वो। तो स्त्रियों ने किस्सा सुनाना शुरू किया, और वहां से मतलब ये पूरी सांस्कृतिक दुनिया स्त्रियों ने बसाई है, जो अब तक के हमारे पास साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं और जो अध्ययन मंथन वैज्ञानिकों ने किया है उससे ये पता चलता है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि स्त्रियां ही बच्चों को जन्म देती थी, वही पालती थी, पुरुषों को तो कोई मतलब होता नहीं था। तो उस जमाने में, उस समय में, लाखों साल पहले स्त्रियों को ही सब कुछ करना पड़ता था। तो एक तरह से वो शिक्षक भी हो जाती थी, किस्सा गो भी हो जाती थी, डॉक्टर भी हो जाती थी, तो वो सब काम करती थी। इसलिए वहां से सुनाने की बात, कुछ कहने की बात स्त्रियों से शुरू हुई, तो वहां से वो परंपरा आई। और ये विषय बहुत अच्छा रखा गया। जब भारत की परंपरा में हम आते हैं और फिर वैश्विक परंपरा, वो जो 18 लाख साल पहले अग्नि वाला हुआ, अभी तक जो साक्ष्य है वो उसके कई हैं, लेकिन अभी जो भारत में जब हम वेद की बात करते हैं और फिर अभी आते हैं, और आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर आता हूं, बड़ा अंतर आ गया है। और जो वेद में था, जैसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, अब इसका एक अर्थ जो सामान्यतः साहित्यकार लगाते हैं, उसका मतलब किसी शीशे के आईने जैसा हो जाता है कि जो समाज में दिखा मैंने वो लिख दिया, जो दिखा वो लिखा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब भूतपूर्व का हमारी जो परंपरा है वहां से शुरू होता है। दर्पण का मतलब
जो दर्पण भूत भी दिखा रहा, जो हमारी परंपरा भूत की रही, वर्तमान का संघर्ष भी दिखा और भविष्य के सपने भी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, वैसे दर्पण की बात की गई है। और हम क्या कर रहे हैं? सरकार, प्रशासन, नाला पमाला, समाज, पति पत्नी इतना ज्यादा घुस गए हैं कि सपने तो बहुत दूर जा चुके हैं, सपने कहीं है ही नहीं। आज के अधिकांश लेखक, मैं स्त्री पुरुष वहां पे अंतर नहीं कर रहा, अधिकांश लेखक ऐसा फंसे हैं। और ये प्रेमचंद के आसपास की परंपरा, मतलब वहीं से लगभग ये शुरू हुई है यथार्थ कहने की। और उस यथार्थ में प्रेमचंद ने तो सपने बुन दिए थे, बाद में धीरे 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 सपने गायब होने लगे और यथार्थ प्रभावी होने लगा। हमारी कहानी में यथार्थ ही प्रबल होकर आ गया। तो उसका जो फर्क दिखाई पड़ता है जब आप वेद की उन नायिकाओं को देखेंगे, 8, 10, 12 जो नायिकाएं थी, लेखक, मैं उनको नायिका के रूप में देखता हूं क्योंकि रचयिता वही है, जिसने रचना की वही नायक है। तो उन महिलाओं ने, जो स्त्रियों ने नायकत्व तो दिखाया वहां और वेद की रचना की, तो वेदों में जो मंत्र हैं, आपने पढ़ा है, वेदों में जो मंत्र हैं बच्चों, आप सब समझें, वो स्व की प्रार्थना ज्यादा है, अपने जीवन के कल्याण की बात ज्यादा है। हम क्या बोले, किसका नमन करें, किसको प्रणाम करें, किस तरह से हम अपना जीवन जिए, इसकी पूरी पद्धति है। तो वहां पर सपने ही सपने, वहां पे यथार्थ आपको सीधे इस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा जो आज का हमारा संवाद है साहित्य का। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि वहां पे उन सपनों के साथ जीने की, आज भी अभी हम लोग दिनकर पर जो बात कर रहे थे, आपके जीवन को प्रभावित करना, आपके सपनों में वेग लाने जैसी स्थिति अगर आपके साहित्य में नहीं आ पाया तो आप कुछ कमजोर पड़े। वो फर्क हमें उस समय के और आज के साहित्य में दिखाई पड़ता है। इसमें रत्नेश्वर जी, जैसे वैदिक ऋचाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो ऋचाएं महिलाओं द्वारा रचित है और जो अन्य ऋचाएं हैं, उसमें कुछ अंतर लगता है क्या? ये वैसे अंतर तो है, लेकिन उस अंतर को अगर आप पूरा देखिए, जो वेद हमारे पास है, मुश्किल कहां आई, ये अंतर जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो बाद में टंकित किया गया है, वहां ज्यादा अंतर दिख रहा है। हम लोग मूल ऋचाओं पर नहीं हैं। हम लोगों के पास जो ऋचाएं हैं वह अभी आप भी जानते हैं, मास कम्युनिकेशन में एक छोटा सा एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि एक ने कान में कुछ कहा, फिर दूसरे ने तीसरे से कहा, फिर तीसरे ने चौथे से कहा, और पहले ने जो कहा और चौथे ने जो कहा, उनमें बड़ा अंतर आ गया। तो जो वेद है हमारे पास, उसमें आधे से अधिक तो हमारे पास है ही नहीं, और जो है उसमें भी श्रुति में चूंकि वो था, इसलिए वो बहुत अंतर आ गया है। तो इसलिए उसकी गहराई में मैं उस रूप में नहीं जाना चाहता। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा उस रूप में ले चलते हैं। मैं थोड़ा इस पे थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ कि मेल वॉइसेस पोर्ट्रेइंग फीमेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स वाइस वर्सा बहुत अंतर है एक्चुअली। मैं उसमें आपसे एक अलग प्रश्न करूंगा। देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो जैसे मैं देखता हूँ, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वेदों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट ड्रीम्स, एट प्रेयर्स, हम लोग कुछ अपने लिए मांगते हैं। लेकिन उसी को जब उपनिषद में आते हैं, तो उपनिषद में इट्स क्वेश्चन एंड आंसर, और उसमें महिलाओं की जब बात करेंगे, चाहे मैत्रेयी की बात हो, तो मैत्रेयी इज आस्किंग याज्ञवल्क्य, जिसमें वो स्वयं नहीं जानती है, एंड शी इज क्वेश्चनिंग। उसी प्रकार गार्गी को भी यदि हम देखेंगे बात करते हुए, तो स्वयं नहीं जानते हैं। वेदों में जब जाते हैं पुराने में, तो महिलाओं को पाते हैं एज क्रिएटर्स ऑफ द हिम्स। आपसे मैं इस रूप में जानना, जो मैंने आपसे प्रश्न किया कि महिलाओं के क्रिएशंस में और पुरुषों के क्रिएशंस में क्या अंतर है, इसको थोड़ा अलग करते हुए आपसे पूछूंगा। सपोज हम महारामायण की बात करें, तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि मान लीजिए माँ जानकी को, सीता जी को कहा जाता कि उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा हो, तो हाउ वुड शी हैव सीन द रामायण एज पर पर्सपेक्टिव, फीमेल पर्सपेक्टिव ऑफ द होल? अगर उनको ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी होती तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या
जिस रूप में महर्षि वाल्मीकि ने देखा था या जिस रूप में और जितने वर्जन उसी में देखा था या कुछ अलग होता है? ये तो बहुत कमाल का प्रश्न है, बहुत ही कमाल बहुत का, सुंदर। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से एक्चुअली वाल्मीकि रामायण ने बहुत ज्यादा जस्टिस की थी फीमेल कैरेक्टर्स को। आई थिंक इट मेंटेन्ड इट्स ओरिजिनल एसेंस ऑफ हाउ female and the feminine essence should have actually been. Whatever we have seen later, मतलब प्राचीन काल से अगर आप मध्यम काल तक उस दौर का जर्नी अगर आप ट्रैवर्स करें तो फीमेल प्रोजेक्शन चेंज्ड ड्रास्टिकली. सो इफ जानकी माता हैड टू लुक एट हर ओन लाइफ, मेरे ख्याल से she would have seen herself more or less in the way Valmiki projected her. I don't see too much of a gap. The feminine gaze would have possibly differed in maybe one or two places, specific incidents maybe. Maybe she would have possibly wondered why she had to. There are reasons for that also, which Ami ji has spoken about very extensively in many of her research works. Ami Ganatra, जो कि काफी रिसर्च कर चुकी है इसके बारे में. Maybe she would have questioned one or two aspects towards the end as to why she had to possibly project herself, go through the Agni Pariksha. Maybe, but then there are very qualitative reasons for that as well. उसके काफी सारे कारण हैं, explanations भी हैं. तो मेरे ख्याल से जानकी माता अगर खुद प्रोटैगनिस्ट बनती तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके अपने पर्सपेक्टिव में, और जो वाल्मीकि रामायण जो उनका जो प्रोजेक्शन है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. नहीं, चलिए इसमें हम लोग आगे चलते हैं माधवी जी के पास. आपसे मैं पूछूंगा, सीता माता की तो बात हम लोगों ने कर ली, उन्होंने शांति जी फील्स की शुड हैव मोर और लेस हैड द सेम पर्सपेक्टिव जो महर्षि वाल्मीकि का रहा हो. अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में वी ऑफन फील दैट मेनी ऑफ द इवेंट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंसल्ट ऑफ द्रौपदी. तो इफ द्रौपदी वर टू राइट हर ओन स्टोरी, हाउ वुड शी हैव डिस्क्राइब्ड दोस थिंग्स? There's a woman writer known as Iravati Karve. She is supposed to be the first female sociologist in our country. So she has written a book called Yugantar, and in that she has brought in a very different perspective about the characters. So she writes about all the characters from a woman's gaze, and they are drastically different from what we have read. So that is one example. And if you ask me, like yes, I do feel that महाभारत में औरतों के साथ, खासकर द्रौपदी के साथ, इतना जस्टिस नहीं हुआ है. जैसे हमारी बुक की बात करें, हमने हाल ही में अभी अदृश्य लिखी है, उसमें हमने फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर लिखा है. आपने भी महाभारत के किन्हीं कैरेक्टर पे लिखा है जैसा? जी, मैंने दुशाला पे लिखा है. तो बताएं उनके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी या उनकी फ्रीडम थी अभिव्यक्ति की, वो कितना उसको प्रिजर्व कर पाए हैं या उसके बारे में आज जानते हैं? Dushala is supposedly a seemingly perfect character with a very good life, a loving husband and 100 brothers. बट अगर आप उसको बारकाई से देखें, एक तो महाभारत में उसका उल्लेख ज्यादा नहीं होता है. You get to hear about her once or twice, and you get to meet her only in the Ashwamedh Parva when Arjun comes to meet her. But other than that, Dushala is a sideline character. तो उसका अपना कोई अस्तित्व या अपनी कोई पहचान या अपनी कोई ऐसे सेइंग नहीं है वहाँ पे. She is a character who is trying to struggle with her inner insecurities, her vulnerabilities, और इसी को दर्शाने की कोशिश की गई है इस कहानी के माध्यम से. मैंने कोशिश की है कि दुशाला के बारे में कुछ कह सकूं, क्योंकि महाभारत में शायद एक ही दुशाला दिखे, लेकिन हमारे समाज में ऐसी कई दुशालाएं हैं जो फैमिलीज के बीच बैलेंस लाने की कोशिश करती हैं. महाभारत सिर्फ रणभूमि पे नहीं, सबके अंतर्मन में भी चल रहा होता है, और दुशाला जैसी औरतों के अंतर्मन में तो और भी ज्यादा भयानक लड़ाई चल रही होती है कि किसका साथ दें, लव और लॉयल्टी, ब्रेन और हार्ट. सो दैट इज वन थिंग दैट आई ट्राई टू ब्रिंग आउट. दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट, वन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स दैट आई स्पेंट माय टाइम रिसर्चिंग ऑन. बहुत अच्छा काम किया आपने. इनफैक्ट दुशाला इज वन ऑफ द लेसर नोन कैरेक्टर्स इन द महाभारत. उनके बारे में आपने इतना रिसर्च किया और इन चीज़ों को
सबके सामने लाई हैं आप। रत्नेश्वर जी, आपसे वही प्रश्न मैं लगभग फिर पूछता हूँ कि अगर सीता माता ने रामायण अपने हिसाब से लिखी होती या द्रौपदी की अपनी ऑटोबायोग्राफी होती, तो कैसा अंतर पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता जो वर्तमान में हम पाते हैं? जो वर्तमान में है उससे बिल्कुल अलग होता। और अलग कहां से शुरू होता? क्योंकि सीता का जो पक्ष था और सीता का जो व्यक्तित्व था वह किसी भी रचनाकार ने नहीं उभारा। बचपन से सीता जिन चीतों तेंदुओं के साथ खेलती थी, उसका जो बाहुबल था, स्वयंवर में ज्यादा रचनाकारों ने फंसाया सीता को कि राम आ रहे हैं और सीता मोहित हो रही है। उस चक्र में ज्यादा रचनाकार ले गए और सीता जो धनुष उठा लेती थी रोज और सफाई करती थी, उसकी तो चर्चा बस आई और गई हो गई। तो जो सीता थी, सीता होने की वजह से ही राम राम हो पाए, अन्यथा राम तो शक्ति भी नहीं थे, उनके पास वो सामर्थ्य भी नहीं था कि वो रावण से जीत सकते थे। तो पूरी पेंटिंग ही एकदम अलग तरह से की गई, पुरुषवादी मानसिकता एकदम पूरी तरह हावी हो गई वहां पर, और ये कहानी ही पूरी बदल गई। सीता जितनी शक्तिशाली थी, राम उतने शक्तिशाली नहीं थे, ये फैक्ट है। और वहां पे सीता साधारण एक पत्नी बनी रह गई, राम का साथ देने वाली। अंतिम में इन्होंने, निराला ने तो लिख भी दिया, वो जो राम की शक्ति पूजा है, जब वो फूल चढ़ा रहे हैं वहां पे वो आह्वान करते हैं शक्ति की कि शक्ति आएगी तभी जीत पाएंगे, युद्ध नहीं जीत पा रहे थे राम, और तब आह्वान किया। और जब जानबूझ के लक्ष्मी जो है वो एक फूल गायब कर दिए, वो लिख रहे हैं, तो वहां पे वो अपना आंख देने लगे राम एक कमल नयन के रूप में, तब जाकर के वहां पे वो प्रकट होती है और उनको वो पूरी शक्ति प्रदान करती है, और तब राम विजयी होते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव अभी हमारे बीच है राम की, उस पर्सपेक्टिव में पूरी तरह बात उल्टी हुई है, सीता की पूरी बात ही गौण कर दी गई।